Dear students, today we are going to read the lesson Mother's Day, written by J.B. Priestley. This play brings out the sad condition of mothers in most homes. A mother works from morning till night to satisfy the needs of her husband and children. She cleans and sweeps, she cooks and washes, but sadly, she gets no reward or praise for her labors. जो माँ दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए मेहनत करती है, सुबह से उठ करके रात तक गृह कार्यों को करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन बदले में उसे कोई भी रिवार्ड या प्रेज, प्रोत्साहन या प्रशंसा भी नहीं प्राप्त होता. Her husband and children are most thoughtless. They don't ever think that the mother is not a machine. They never realize that she too is a human being and needs rest. We work 5 or 6 days a week and claim it as a right to have a day or two off. But do we allow the same right to mothers? Don't mothers too, like all of us, have a body that can get tired and a mind that can get bored? Don't they too need some rest or recreation? Do we ever think of it? If we don't, we need to be chastised in some way. This is what this play is all about. This play, written in 1950s, is a humorous and satirical depiction of the status of the mother in family. This play depicts the plight of a mother in a family. It raises the following issues. Mother is treated like a slave. She has no choice of her own. She is always taken for granted. About the author, John Burton Priestley was an English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster, and social commentator. His Yorkshire background is reflected in much of his fiction, notably in The Good Companions, which first brought him to wide public notice. Characters in the play: Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, Mrs. Fitzgerald. Theme of the lesson: the play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Reveals how a mother's efforts are ignored by the family members. It revolves around now her friend, who is a fortune teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. ये प्ले जो है एक ह्यूमरस पोर्ट्रेयल है एक माँ की स्थिति का जो परिवार में होती है. Reveals how a mother's efforts are ignored by her family, और इसमें ये बताया जाता है कैसे माँ के प्रयासों को परिवार द्वारा अनदेखा किया जाता है. It revolves around how her friend, who is a fortune teller, और इस कहानी में उसकी सहेली जो एक भविष्यवेत्ता है वो किस प्रकार से उसकी मदद करती है परिवार में उसका स्थान दिलाने के लिए, वो सम्मान दिलाने के लिए जो उसे मिलना चाहिए. Summary of the play. The play begins with two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. Mrs. Fitzgerald is telling Mrs. Pearson's fortune and advises her on it. Mrs. Pearson goes about telling how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. वो बताती है कि उसके घर के परिवार के सदस्य जो है उसको वो सम्मान नहीं देते जो उनके प्रति दिन रात कार्यों में लगी रहती है. She is available for them 24/7. सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उनकी सेवा में लगी रहती है. And all they do is come in, throw orders around, और इतना वो करते हैं कि वो आते हैं, ऑर्डर्स देते हैं उसको, and leave without even saying thank you, और बिना धन्यवाद किए चले जाते हैं. Mrs. Fitzgerald tells her to take her stand as the woman of the house, but Mrs. Pearson, being the sweet and innocent lady, doesn't want to bring her family any sort of discomfort. वो मना करती है कि नहीं, वो परिवार को ऐसी स्थिति में नहीं ला सकती.
She continues to handle their tantrums because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined. Mrs. Fitzgerald proposes a plan to switch their bodies so that Mrs. Fitzgerald takes her place without her family knowing. Mrs. Pearson is hesitant at first, but then Mrs. Fitzgerald convinces her for it. Mrs. Fitzgerald performs her magic that she had learned from the East and their personalities are changed. इन दोनों की personalities व्यक्तित्व change हो जाते हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन बन जाती हैं और मिसेस पियर्सन फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी ले लेती हैं. Now Mrs. Fitzgerald is actually in Mrs. Pearson's body and vice versa. Now new Mrs. Pearson tells Mrs. Fitzgerald to go to her house for the time being. At this moment in the play, Doris Pearson, daughter of Mrs. Pearson, enters the scene asking for tea and ordering Mrs. Pearson to iron her yellow silk. She gets shocked at the sight of her mother smoking, and from there the argument begins, where Mrs. Pearson insults Charlie Spence, the guy she is about to go out with. Doris leaves crying, and Cyril, her brother, enters asking for tea and something to eat. He too is amazed at having come home to see that there is nothing to eat and no tea to drink. Upon asking if anything is wrong, Mrs. Pearson tells him that she had never felt better. Cyril gets annoyed and Doris joins him, where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off. Next, George Pearson enters the scene, shocked to see his wife day drinking. He announces that he had some special match at the club and that he won't be requiring any tea this afternoon. On being told there is no tea, he gets annoyed again. Mrs. Pearson mocks him for getting annoyed at not getting something he didn't actually want. She tells him about the names they call him at the club. She further taunts him that this would not have happened had he stayed at home once in a while. After a while, Mrs. Fitzgerald enters. She interferes in their family matters. George gets annoyed when Mrs. Fitzgerald calls him by his name. But just like it had been happening all day, Mrs. Pearson barges in to bring George on track. Doris enters the scene and she too is not very pleasant to Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson brings her on track too. At this point, Mrs. Fitzgerald, actually Mrs. Pearson, loses her cool and asks the family members to excuse the two friends for a moment. She promises them that she knows how to make the situation better. Mrs. Fitzgerald asks Mrs. Pearson to switch their bodies, and while Mrs. Fitzgerald resists at first, but later she agrees to do it. They repeat the process they did in the first place. The real Mrs. Fitzgerald now explains Mrs. Pearson how important it is for her to be a bit dominating once in a while to establish her control and respect. The family enters and Mrs. Pearson suggests that they play rummy and the kids make supper. Everyone instantly agrees and they are a bit relieved too. Mrs. Fitzgerald exits and the play ends. This is all the play. Scene 1. The action takes place in the living room of the Pearson's house in a London suburban area. Time, the present, वर्तमान का समय. Scene, the living room of the Pearson family. Mrs. Pearson का living room, drawing room है. Afternoon, दोपहर का समय है. It is comfortably furnished. बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है. Much lived in room in a small suburban semi-detached villa. और एक सेमी अर्बन जगह में एक विला का एक कमरा है, लिविंग रूम. इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड. अगर आवश्यकता पड़े तो केवल एक दरवाजे की जरूरत पड़े. बट इट इज बेटर विद टू, लेकिन दो दरवाजों के साथ अच्छा है. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक दरवाजा फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द सीढ़ियों की तरफ, एंड द अदर इन द राइट, और दूसरा जो है दाईं तरफ, वॉल लीडिंग टू द किचन, जो दीवार किचन की तरफ जाती है, एंड द बैक डोर, और पिछला दरवाजा. देयर कैन बी ए muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. चौथी दीवार में fireplace है, आग जलाने की जगह. There is a settee upright, एक settee रखी हुई है दाईं तरफ. An armchair down left, एक आरामदेह कुर्सी बाईं तरफ रखी हुई है. And one down right, और एक नीचे दाईं तरफ. A small table with two chairs, एक छोटा टेबल है दो कुर्सियों के साथ. On either side of it stands at the center, जो मध्य में रखी गई है. दृश्य यह है.
बच्चों। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn. जब पर्दा उठता है दोपहर का समय है, ऑटम का सीजन प्रारंभिक, एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, स्टेज पर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन दाईं तरफ हैं, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड एट लेफ्ट, और मिसेस फिट्जगेराल्ड बाईं तरफ हैं, आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई, एट द स्मॉल टेबल, छोटे मेज पर, विच आर टू टी कप्स, दो चाय के प्याले एंड सॉसर्स रखे हुए हैं, इन द कार्ड्स विथ which Mrs. Fitzgerald have been telling Mrs. Pearson fortune, और वो ताश के पत्ते हैं जिनसे, वो कार्ड्स हैं जिनसे मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के भविष्य को बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन बहुत ही अच्छी सीधी सादी महिला लेकिन चिंतित रहने वाली 40 वर्ष की उम्र की महिला है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज ओल्डर, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो उनसे बड़ी हैं, हैवियर, थोड़ी भारी भी है, ने स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, और एक मजबूत व्यक्तित्व की महिला और थोड़ी अजीब रहस्यमयी महिला है। सी स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये ध्यान देने की बात है कि दोनों की आवाजें भी डिफरेंट हैं। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन बहुत ही हल्की कोमल आवाज में बात कर रही हैं, विद ए टच ऑफ सबअर्बन कोंकणी, परहैप्स कोंकणी भाषा, सबअर्बन भाषा में बहुत ही हल्के कोमल स्वर में बात कर रही है। मिसेस फिट्जगेराल्ड विद अ डीप वॉइस, बहुत गहरी आवाज, लेदर आयरिश परहैप्स, संभवतः आयरिश टोन है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेस फिट्जगेराल्ड कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ। कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, अच्छा भविष्य हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, और बुरा भी, ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ नाउ, जो कुछ भी भविष्य है अब तुम पर ही निर्भर है। मेक अप योर माइंड, अरे अपने दिमाग में ये विचार डाल लो, एंड देयर इट इज, कि तुम्हें ऐसे करना है और सब कुछ अच्छा होगा, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू, हाँ हाँ धन्यवाद। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, बहुत बहुत कृपा आपकी। आई एम श्योर, निश्चित रूप से, इट इज वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, और बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पड़ोस में ही एक अच्छी भविष्य वेदता है जो भविष्य बताती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने ये ईस्ट में सब सीखा था? मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई डिड, हाँ मैंने सीखा था। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 वर्ष विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, जब मैं अपने पति के साथ वहां थी। ही लर्न ए लॉट, उसने भी सीखा, एंड आई लर्न ए लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज्यादा सीखा इस कला को। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन ध्यान दो, तुम अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए निश्चित कर लो कि तुम अपने व्यक्तित्व में ये परिवर्तन लाओगी। मिसेस पियर्सन, पुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, एक बार कदम आगे बढ़ाओ, एक बार सबके लिए, अपने परिवार के लिए, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मालकिन कहलाओ, एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की बॉस हो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलॉजेटिकली, मुस्कुराते हुए कुछ खेतपूर्ण ढंग से, दैट इज इजियर सेड देन डन, अरे करने से आसान है कहना, कहना बहुत आसान है मिसेस फिट्जगेराल्ड। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर ए सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, और मुझे इतना लगाव है अपने परिवार से कि यद्यपि वे बहुत ही विचारहीन और स्वार्थी किस्म के हैं सभी, लेकिन मैं उनको बहुत चाहती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ कड़े रूप से पेश आऊं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कटिंग इन, बीच में बोलते हुए, मे बी नॉट, संभवतः नहीं, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, ये उनके लिए अच्छा होगा, इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, अगर वे तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करना है, उचित ढंग से व्यवहार करना तो सीखें। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे, हाँ मैं मानती हूँ कि एक तरह से उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कौन बिगड़ना चाहता है, और ग्रोन मैन, लैड और गर्ल, एक वयस्क आदमी, लड़का हो लड़की हो, बिगड़ा हुआ कौन अच्छा होता है? नोबडी, कोई नहीं चाहता। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, तुम सोचती हो क्या इनसे उनका भला होता है जब तुम पूरे दिन उनके पीछे दौड़ती रहती हो, टेक देयर ऑर्डर्स, उनके आदेशों को लेती रहती हो, एज इफ यू वेयर द सर्वेंट्स इन द हाउस, जैसे तुम इस घर में नौकरानी हो। स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, पूरी रात दिन जो है तुम घर में रहती हो, उनका इंतजार करती हो, और उस दौरान वो जो है
बाहर जाकर के एंजॉय करते हैं, वो घूमते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट इज द रून ऑफ देम एज वेल एज यू, और ये उनकी बर्बादी है। मिसेस पियर्सन, थोड़ा चेंज लाओ। हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स। पतियों को, बेटों को, बेटियों को अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए। एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उन्हें बहुत छोटा गंद समझना चाहिए कि ये केवल काम करने के लिए है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानती कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ये लोग कैसे पेश आते हैं तुम्हारे साथ। आई नो फॉर मोर देन यू हैव टोल्ड मी, मैं जितना तुमने मुझे बताया मैं उससे भी ज्यादा जानती हूँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, संदेहपूर्ण ढंग से, दुविधापूर्ण ढंग से, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट। हाँ, मैं एक इशारा दे रही थी। मिसेस फिट्जगर्ड, हिंट, इट इज मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। अरे हिंट से नहीं होगा, तुम्हारे परिवार को हिंट से भी ज्यादा की जरूरत है, इशारे से ज्यादा। इशारे से ठीक नहीं होंगे मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, संदेहपूर्ण ढंग से, आई सपोज इट इज, हाँ मैं मानती हूँ, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी घर में जिससे माहौल बिगड़े। एंड इट इज सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बड़ा मुश्किल है कहाँ से शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मैं चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। सी ग्लांसेस एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, और अपनी घड़ी की तरफ देखती है। ओ गुड ग्रेसियस, लुक एट द टाइम, अरे हे ईश्वर, जा समय देखो कितना हो गया। नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है घर में। एंड दे विल बी होम एनी मिनट, और वे अभी घर आते ही होंगे। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और सभी को जल्दी होगी फिर से बाहर जाने में। As she is about to rise, और जैसे ही वो उठने वाली होती है, मिसेस फिट्जगर्ल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल। मिसेस फिट्जगर्ल्ड मेज पर पहुंचती हैं, पुल्स हर डाउन, और उसे पकड़ के बिठा देती है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। अरे उन्हें इंतजार करने दो, या खुद उन्हें अपना अपना काम करने दो। दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, और यहीं पे तो तुम कमजोर पड़ती हो। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू हो जाओ। सी लाइट्स ए सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैड जस्ट फिनिश्ड, और वो एक सिगरेट सुलगा लेती है जिसे उसने अभी समाप्त किया है। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आई नो यू मीन वेल। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। इनफैक्ट आई एग्री विथ यू, वास्तव में मैं तुमसे सहमत भी हूँ। बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट इज नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई इस्तेमाल नहीं जैसा तुम मुझे बनाना चाहती हो। इफ आई प्रॉमिस you I'd really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise। और अगर मैं प्रॉमिस भी करूं कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं ऐसा अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं कर पाऊंगी, और मैं आपसे किए हुए वायदे को नहीं निभा पाऊंगी। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, देन लेट मी डू इट, तो फिर ठीक है, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच, अरे नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद आपका मिसेस फिट्जगर्ल्ड, बट दैट wouldn't do at all, इससे तो कुछ नहीं होगा और बात बिगड़ जाएगी। It couldn't possibly be somebody else, अरे कोई दूसरा कैसे कर सकता है। They did resent it at once, वे तुरंत विरोध कर देंगे। And wouldn't listen, और वो सुनेंगे नहीं। And really I couldn't blame them, और फिर उन्हें मैं ब्लेम भी नहीं कर सकती। I know I ought to do it, मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना चाहिए। But you see how it is, लेकिन तुम देखो ये कैसे है। She looks apologetically across the table, और बहुत ही खेतपूर्ण ढंग से वो मेज की तरफ देखती है। स्माइलिंग रेदर मिजरेबली, और बहुत ही दयनीय हालत में मुस्कुरा रही होती है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड कूली, बहुत शांत भाव से, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, अरे तुमने मेरे बातों को समझा नहीं, मैं क्या कह रही हूँ। मिसेस पियर्सन bewildered, oh I am sorry, I thought you asked me to let you do it। अरे माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि आप मुझसे कह रही हैं कि आप करेंगे मेरी जगह मेरे पति को, बच्चों को ठीक। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, आई डिड, हाँ मैंने ऐसा ही कहा था, बट नॉट एज मी, लेकिन मेरे तौर पे नहीं, एज यू पियर्सन, मिसेस पियर्सन बन करके, आपकी जगह पर होकर के मैं ऐसा करूंगी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, लेकिन मैं नहीं समझी, आप मेरी जगह कैसे ले सकती हैं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड कूली, वी चेंज प्लेसेस, हम आपस में अपनी जगहें बदल लेंगे। और रियली बॉडीज, हम अपने शरीरों को, वास्तव में हम अपने शरीर को बदल लेंगे। यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह से दिखोगे। आई लुक लाइक यू, और मैं आपकी तरह से दिखूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है।
मिसेस फिट्जगर्ल्ड, हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम कि यह संभव है? एवर ट्राइड इट? क्या कभी आपने कोशिश की है? मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, वास्तव में नहीं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड कूली, आई हैव, मैंने ऐसा किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट स्टिल ऑफ टू वर्क, कभी कभी नहीं लेकिन अक्सर ये काम करती है। वोंट लास्ट लॉन्ग, ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा ऐसा पर्सनालिटी चेंजेस जो हम करेंगे, बट लॉन्ग एनफ फॉर व्हाट्स वी वांट टू डू, लेकिन इतने पर्याप्त समय के लिए रहेगा कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट, मैं ईस्ट में ये कला विद्या सीखी थी। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, वास्तव में जब ये चीजें मैंने सीखी। सी होल्ड्स हर हैंड्स आउट अक्रॉस द टेबल, और फिर उसका हाथ पकड़ती है, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और सिगरेट को अपने माउथ में रखती है। गिव मी योर हैंड्स डियर, प्लीज गिव मी योर हैंड्स, चलो हम ऐसा करते हैं। मिसेस पियर्सन संदेहपूर्ण ढंग से, वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इज इट राइट, क्या ये सही होगा, ये सही है हम ऐसा करें? मिसेस फिट्जगर्ल्ड, इट इज योर ओनली चांस, एकमात्र ये मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट, अब मुझे अपना हाथ दो और शांत रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी दूसरी चीज के बारे में मत सोचो इस समय। टेकिंग हर हैंड्स, उसका हाथ पकड़ते हुए, नाउ लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वे एक दूसरे को घूर के देखते हैं। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, असट्टा डम असट्टा लम, असट्टा लम डम बोना, यह मंत्र पढ़ते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए। सीन 2, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये जो सीन है इसको बहुत सावधानीपूर्ण ढंग से खेलना है, मंच पर अभिनीत करना है। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, और हमें ऐसा मानना है कि पर्सनैलिटीज चेंज हो रही हैं। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, और जब मंत्र बोला जाता है, बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, अपने हाथ, दोनों हाथों को पकड़े हुए, गो लैक्स, ढीली पड़ती चली जाती हैं, एज इफ द लाइफ वेयर आउट ऑफ देम, जैसे उनके अंदर से जीवन निकल रहा हो। दे बोथ कम टू लाइफ, और फिर धीरे धीरे जीवन में वापस आते हुए, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन दूसरे व्यक्तित्व को लिए हुए। मिसेस फिट्जगर्ल्ड मिसेस पियर्सन बनती हुई, और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगर्ल्ड बनती हुई। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, और दोनों को एक दूसरे की आवाज और तौर तरीकों को भी सीखना है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, और दोनों का व्यवहार बदल जाता है। मिसेस पियर्सन जो है बहुत बोल्ड दिख रही हैं, डोमिनेटिंग नेचर की दिख रही हैं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग, और बहुत ही घबराई हुई, घबराती हुई वो दिखाई दे रही हैं। मिसेस पियर्सन, नाउ विथ मिसेस फिट्जगर्ल्ड पर्सनैलिटी, मिसेस पियर्सन जो फिट्जगर्ल्ड की पर्सनैलिटी में है। सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मैंने क्या कहा था। सी नोटिसेस द सिगरेट, और फिर वो सिगरेट की तरफ ध्यान देती है। यू डोंट वांट दैट, इसे तुम्हें जरूरत नहीं है। सी स्नैचेस इट, उसे छीन लेती है, एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ, और उसे अपने मुंह में रख लेती है। पफिंग कंटेंटली, और पफ करती है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड नाउ विथ मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जगर्ल्ड जो अब मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, अपने आप को देखती हैं, एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, वो देखती हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है पूरा बदल चुका है, और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। मिसेस फिट्जगर्ल्ड विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, जो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में है, ओ इट इज हैपेंड, अरे हो गया जैसा हमने सोचा था। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट इज हैपेंड, वास्तव में हो गया है। वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी, और मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिट्जगर्ल्ड है वास्तव में, वो कहती है हाँ बहुत अच्छे से, और मुझे नहीं मालूम था कि ये कला मेरे अंदर अभी जीवित है, हम ऐसा कर सकते हैं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड अलार्म, मिसेस फिट्जगर्ल्ड जो मिसेस पियर्सन है चौकन नहीं होती। बट व्हाट एवर शैल आई डू, अब हम क्या करेंगे? मिसेस फिट्जगर्ल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, बच्चे और जॉर्ज जो है मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, और ऐसा नहीं करना है, यही तो मुख्य बात है। दे ऑल हैव मी टू डील, तुम्हें नहीं करना है, ये सब मुझे देखना है। दे वोंट नो इट, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जगर्ल्ड स्टिल अलार्म, मिसेस फिट्जगर्ल्ड जो मिसेस पियर्सन है अभी भी चौकन नहीं होते हुए। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, लेकिन क्या होगा अगर हम आपस में फिर से पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाएंगे? इट वुड बी टेरिबल, बड़ा भयानक होगा। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, अरे शांत हो मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, अगर आपको कुछ समय के लिए मेरा जीवन जीना होगा तो मेरा जीवन इतना बुरा नहीं है। You had have more fun as me than you have had as you, मेरी पर्सनैलिटी में आपको ज्यादा मजा आएगा जितना आप तक आज तक आपको नहीं आया होगा। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स,
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरे की पर्सनैलिटी में रहूं। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना बंद करो। इट इज ईजियर चेंजिंग बैक, पर्सनैलिटीज को चेंज करना वापस से बहुत आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, मैं किसी भी समय ऐसा कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, वेल डू इट नाउ, तो ठीक है फिर अभी कर दो। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, अरे अभी नहीं, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, मुझे पहले तुम्हारे परिवार को देखना है, संभालना है, दैट इज द आइडिया। और इसी विचार के साथ हम लोगों ने पर्सनैलिटी चेंज की थी, इजंट इट? क्या ऐसा नहीं था? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उन्हें व्यवहार में लाना है। यू सेड, आपने तो ऐसा कहा था। वेल आई विल शो यू, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करना है, कैसे मैं सही करती हूँ। मिसेस फिट्जगर्ल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ? मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर ए बिट, देयर इज नो बडी देयर, मेरे कुछ समय के लिए मेरे घर में जाओ, वहां पे कोई नहीं है। देन पॉप बैक, फिर आना वापस झांकती हुई, एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर झांक के देखना कि कैसे देखो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर तुम्हारे बच्चों और पति के साथ। यू हैव टू एंजॉय इट, तुम एंजॉय करो। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और अच्छा होगा कि तुम इस समय यहाँ से चली जाओ, इसके पहले कि कोई आ जाए। मिसेस फिट्जगर्ल्ड नर्वसली राइजिंग, घबराए हुए उठती हैं मिसेस फिट्जगर्ल्ड, जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है। यस आई सपोज दैट इज द बेस्ट, हाँ मैं समझती हूँ कि ये अच्छा होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, और तुम निश्चित हो कि इससे सब अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग इट, इट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छा होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, तुम यहाँ से चली जाओ। Scene 3. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right. Mrs. Fitzgerald क्रॉस करती हरीज और जल्दी से वो दाई तरफ के दरवाजे से निकल जाती हैं। लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, और बाई तरफ मिसेस पियर्सन जो है धूम्रपान करती हुई लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक दूसरा सिगरेट सिलगाती हैं। वास्तव में ये मिसेस फिट्जगराल्ड है। एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स, कार्ड्स को बिछाती हैं टेबल पे फॉर पेशेंस, बहुत ही धैर्य से मेज पर। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डॉरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, कुछ क्षणों के बाद डॉरिस पियर्सन उनकी बेटी भागती हुई आती है बाएं तरफ से। शी इज ए प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, 20 वर्ष की उम्र की। वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, और बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है अगर वो बिगड़ी हुई नहीं होती। वो अपनी माँ के प्यार दुलार से बहुत बिगड़ गई है। डॉरिस, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, और अंदर आते हुए वो कहती है, माँ मेरी येलो कपड़े को उसको आयरन करना है। आई मस्ट वियर इट, मुझे आज पहनना है, टू नाइट, आज की रात। सी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज एस्टोंडेड, और फिर वो देखती, उसकी नजर पड़ती है कि क्या हो रहा है, कार्ड सिगरेट मुंह में डाले हुए। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो बाई तरफ मध्य में आती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, मिसेस पियर्सन अपनी सामान्य आवाज में, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव, लेकिन अब उनका तौर तरीका मिसेस पियर्सन की तरह से नहीं, हमेशा चापलूसी भरे अंदाज में, माफी मांगने वाले अंदाज में, लेकिन बहुत ही शांतपूर्ण ठंडे ढंग से और वो बात करती है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर देखती भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं सीलिंग छत की व्हाइट वॉश कर रही हूँ? डॉली स्टिल अस्टाउंडेड, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम धूम्रपान कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, ठीक है, नो लॉ अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ कोई कानून तो नहीं है कि मैं धूम्रपान नहीं कर सकती। इज देयर, क्या ऐसा कोई कानून है? डॉलिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मैं तो यही जानती थी कि तुम कभी स्मोक नहीं करती हो। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तुम गलत सोचती थी। डॉलिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या किचन में टी है, चाय है बनी हुई? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, बना लो अगर तुम्हें पसंद है। डॉलिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इज इन रेडी? डॉलिस गुस्से में, इसका मतलब है कि तुम ये कह रही हो कि चाय तैयार नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर्स इज नॉट, तुम्हारा नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मुझे जो चाहिए था मैं अपने लिए सारी तैयारी कर ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेरेंटन, और संभवतः मैं अभी आज बाहर जाऊंगी स्क्वायर और वहीं पे मील लूंगी क्लेरेंटन में। डॉरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, और डॉरिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी माँ क्या कह रही है। हु माइट, किसके साथ? मिसेस पियर्सन, आई माइट, मैं स्वयं जाऊंगी। हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो? डॉरिस स्टेयरिंग एट हर, उसे घूरते हुए, मम व्हाट इज द मैटर विथ यू, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो। डॉरिस इंडिजिनेंटली, इट इज नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मैं सिली नहीं हो रही हूँ, एंड आई मस्ट से इट इज अ बिट मच
when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready? और मैं कह सकती हूँ कि मैं पूरे दिन काम करके इतनी कठोर परिश्रम करके अब मैं घर आई हूँ और तुम मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकती. डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माय येलो सिल्क? तुमने सुना मैंने अपने येलो पीले कपड़े के बारे में क्या कहा है? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं सुना. डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड. तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. डॉरिस इंडिजेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट. हाँ मुझे पसंद है. आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट. वो कपड़ा मुझे पसंद है और मैं आज की रात मैं पहनने जा रही हूँ. सो आई वांट इट आयरन. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको आयरन कर दें. मिसेस पियर्सन, व्हाट इट आयरन? वांट इट, अगर तुम चाहती हो प्रेस किया हुआ. व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ. तो तुम क्या सोचती हो कि क्या होने जा रहा है? जाके खुद आयरन कर लो. डॉरिस, नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी. नहीं, तुम जा रही हो मेरे लिए आयरन करने. तुम करोगी मेरे कपड़े को. यू ऑलवेज डू. तुम स्वयं हमेशा करती हो. मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट. हाँ ठीक है, इस बार मैं नहीं करूंगी. एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड. और मुझसे ये बेकार की बातें मत क्या करो कि तुम बहुत कठोर परिश्रम करती रहती हो दिन भर और थक के आती हो. आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू. मुझे पूरा पता है तुम कितना कार्य करती हो. डॉरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू. मैं दुगने समय तक मैं कार्य करती हूँ जितना तुम करती हो. एंड गेट नो वेजेस. और उसके लिए मुझे कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता. नॉर थैंक्स फॉर इट. ना ही कोई धन्यवाद मिलता है. वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क? अच्छा आज ये तुम पीले रंग कपड़ा को पहने क्यों जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? डॉरिस, सर आउट विथ 40 पेंस. 40 पेंस के साथ मैं बाहर जा रही हूँ. मिसेस पियर्सन, वाई? क्यों? डॉरिस, वाइडली, वाई वाई व्हाट इज द मैटर विथ यू? क्या क्या? गुस्से में होती हुई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वाई शुडंट आई गो आउट विथ 40 पेंस? मैं 40 पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? इफ ही आस्क मी, अगर वो मुझसे कहता है, एंड आई वांट टू, और मैं भी ऐसा चाहती हूँ. एनी ऑब्जेक्शंस? कोई विरोध है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी. बताओ मुझे. मिसेस पियर्सन सेवरली, कठोरता से. कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? क्या तुम्हें 40 पेंस से कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? आई वुडंट बी सीन डेड विथ 40 पेंस. मैं तो उस 40 पेंस के साथ मरना भी नहीं चाहूँ. बक टीथ एंड हाफ विटेड. दांत देखो उसके, और कैसे वो बोल भी नहीं पाता है. डॉरिस, ही इजंट. नहीं, वो ऐसा नहीं है. मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई हैव फाउंड समबडी बेटर देन 40 पेंस. जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे पास मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो 40 पेंस से भी अच्छा था. और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब. और मैं बुरा जॉब की तरह से मैंने उसको लिया. डॉरिस नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप. और डॉरिस जो है रोने वाली है ये सुन करके, कहती हो शट अप, शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो तुम? सीन 4. डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट. डॉरिस बाईं तरफ भाग के चली जाती है. मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर. मिसेस पियर्सन फिर से कार्ड को इकट्ठा करने शुरू कर देती है. आफ्टर अ मोमेंट साइरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. और कुछ क्षण बाद साइरिल पियर्सन बाईं तरफ से आता है. ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस. और वो डोरिस का ही अपोजिट मैस्कुलिन पार्ट है, पुरुषवाचक लड़का है. साइरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी? आते ही, हेलो मम, चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं. साइरिल, मूविंग टू द टेबल एंड नॉइड, व्हाई नॉट? मेज की तरफ जाते हो, क्यों नहीं? मिसेस पियर्सन, कूली, आई कुडंट बॉदर. मैंने नहीं समझा. साइरिल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. क्या तबीयत खराब है क्या? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. अपने पूरे जीवन में मैंने कभी अच्छा नहीं समझा. साइरिल एग्रेसिवली, गुस्से में, व्हाट इज द आइडिया देन? क्या कहना चाहती हो? मिसेस पियर्सन, जस्ट चेंज, केवल एक बदलाव. साइरिल ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम. जल्दी से उठो माँ, अब जो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बाहर जाना है. साइरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम. और साइरिल जाने ही वाला होता है कि मिसेस पियर्सन बोलती है, मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मेरे पास पर्याप्त समय है. साइरिल, यस बट आई हैव नॉट. हाँ लेकिन मेरे पास नहीं है. गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट. आज की रात में बहुत व्यस्त हूँ. मूविंग लेफ्ट टू द डोर, बाईं तरफ जाते हुए. डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? क्या तुमने मेरी चीजें बाहर निकाल दी? मिसेस पियर्सन, कूली, कांट रिमेंबर बट आई ड्रॉप्ड इट. नहीं, याद नहीं है लेकिन मुझे संदेह है, शायद मैंने नहीं निकाला. साइरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग. मेज की तरफ आते हुए विरोध करते हैं. नाउ लुक, अब देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड. जब मैंने आज सुबह तुमसे कहा था, तुमने वायदा किया था. यू सेड यू विल हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग. मिसेस पियर्सन, यस,
वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। हाँ लेकिन, हाँ कहा था, लेकिन अब मैंने निर्णय किया कि मैं ऐसा नहीं करूँ। साहिल, दैट्स ए नाइस वे टू टॉक। ये बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट? क्या होगा अगर हम सभी ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दें? मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। तुम सभी मुझसे ऐसे ही बातें करते हो। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, घर पे कोई कार्य तुम में से कोई भी काम नहीं करना चाहता, यू डोंट डू इट, तुम नहीं करते हो। इफ इट इज समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट, और जहां तुम काम करते हो वहां पे कोई कार्य आता है तो वहां भी तुम नहीं करते, तुम सभी लोग यूनियन बना लेते हो, इकट्ठा हो जाते हो, विरोध करते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। अब देखो ये हुआ कि हमने भी ये अभियान में मैं जुड़ गई हूँ। सारिल स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मम, ये क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन, लैकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, बदलाव है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट, डॉरिस जो है बाई तरफ से आती है। सी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वियरिंग ए रैप, और वो अभी ड्रेसिंग कर रही है, पहन रही है कपड़े। सी लुक्स पेल एंड रेड आइड, पीली पड़ी हुई, आंखें लाल हैं, जो रो रो के उसकी आंखें लाल हो चुकी। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर द फेस इवन फॉर 40 पेंस। तुम बड़ा भयानक दिख रही हो, मैंने कभी 40 पेंस के लिए मैं इस तरह का चेहरा नहीं बनाऊं। डॉरिस मूविंग अबाउट द टेबल एंग्रीली, मेज की तरफ आते हुए गुस्से में, ओ शट अप अबाउट 40 पेंस, 40 पेंस के बारे में बात करना बंद करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी गेट, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं केवल अभी तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट इज योर फॉल्ट, अगर मैं भयानक दिख रही हूँ ये तुम्हारी गलती है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया। सारी क्यूरियस, व्हाई, व्हाट्स इट डू, क्यों रुलाया, क्या किया इसने? डॉरिस, नेवर यू माइंड, तुम मत बात करो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, मिसेस पियर्सन जो है उठती हुई और किचन की तरफ जाती हुई, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, कुछ स्टाउट बचा हुआ है? आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। सारिल, बॉटल और टू, सारिल बोलता है, हाँ एक दो बॉटल बची हुई है। आई थिंक बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन तुम्हें इस समय स्टाउट की क्या जरूरत है? मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू, मुझे जरूरत है। सारिल, व्हाट फॉर, किस लिए? मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, टू ड्रिंक यू क्लॉट, मुड़ते हुए, पीने के लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, वो दाईं तरफ चली जाती है। इंस्टेंटली सारिल एंड डॉरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग, और दोनों आपस में बातचीत कर परेशान से बात करते हैं। डॉरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू, क्या तुम्हारे साथ भी इसने ऐसा ही व्यवहार किया? सारिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस, हाँ चाय तैयार नहीं और अपने में ही खोई हुई। डॉरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज बोथ ऑफ अस, चलो कोई पर बात नहीं, दोनों के साथ इसने ऐसा व्यवहार किया, मैंने सोचा शायद मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार किया। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मैंने सोचा शायद मैंने कोई गलती कर दी। सारिल, सो डिड आई, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, बट इट इज हर ऑफ कोर्स, लेकिन यही बदलाव है इसके अंदर ही। डॉरिस, सी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आई तो ये स्मोक कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारिल, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वाज नॉट, मैंने इससे पूछा भी क्या कुछ तबीयत खराब है, लेकिन इसने कहा कि नहीं वो ठीक है। डॉरिस, वेल सी इज सडनली ऑल डिफरेंट, हाँ अचानक से एकदम बदलाव आ गया इसके अंदर। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, उसी से मुझे रोना आया। इट वाज नॉट व्हाट शी सेड, इससे नहीं जो उसने कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन जिस तरीके से कहा मुझे रोना आ गया। एंड द वे शी लुक्ड, और जैसे वो दिखाई दे रही है। सारिल, हैवंट नोटिस दैट, मैंने नहीं ध्यान से देखा। सी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो वो ऐसे ही दिखाई दे रही है। डॉरिस, सी डजंट टू मी, नहीं वो मेरे साथ ऐसे नहीं पेश। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, तुम्हें क्या लगता है क्या उसको चोट लग गई है सर पे? यू नो आई एम गॉट, व्हाट इज इट, यू नो, तुम्हें पता है कुछ हुआ है इसके साथ? सारिल स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज बामी? डॉरिस, नो यू फैट हेड, यू नो कॉन्कशन शी माइट हैव, नहीं नहीं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारिल, साउंड्स फार फेस्ट। Doris, well, she is far-fetched. If you ask me, she suddenly begins to giggle. Cyril, now, then what is it? अब क्या? Doris, if she is going to be like this when dad comes home, क्या होगा जब डैड घर आएंगे? She giggles again. वो फिर से चिंतित होते हुए वो कहती है, Cyril beginning to guffaw. I'm staying in for that two-front dress circle for the first house. Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Mrs. Pearson
दाईं तरफ से आते हुए एक बॉटल पकड़े हुए स्टाउट की एंड आधी भरी हुई ग्लास. साइरिल एंड डॉरिस ट्राई टू स्टॉप देयर कफिंग एंड गिगलिंग. जो अभी वो आपस में बातें कर रहे थे वो रुक जाते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ. लेकिन इतना शीघ्रता से नहीं कर पाते. मिसेस पियर्सन आ चुकी है अंदर. मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट. बहुत तिरस्कृत निगाहों से उसे उन्हें घूरती हैं. मिसेस पियर्सन coolly, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? तुम दोनों हमेशा ग्रोन अप होने की बातें करते, तुम लोग अपनी उम्र के कब होगे. सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स. वो सेटी पे जाती है और बैठ जाती है. सारिल, कांट वी लाफ नाउ? क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? मिसेस पियर्सन, यस इट इज फनी. हाँ, बड़ा मजाकिया सा. गो ऑन टेल मी. हाँ बताओ. मेक मी लाफ. मुझे भी हंसाओ. क्या हुआ? आई कुड डू विथ इट. मैं भी हंसूं? डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड योर जोक्स. मम, तुम्हें पता है तुम कभी भी हमारे जोक्स को नहीं समझोगी. मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वेर बॉर्न. डॉरिस. डॉरिस almost tearful again. What is making you talk like this? तुम कैसे बातें क्यों कर रहे हो? What have we done? हमने क्या किया है? Mrs. Pearson promptly. Nothing but come in, ask for something, go out again. कुछ नहीं. तुम लोग आते हो, फिर से बाहर चले जाते हो, then come back, फिर वापस आते हो when there is nowhere else to go, जब कहीं जाने को नहीं होता है. Saril aggressively, look, if you won't get tea ready, then I will find something to eat myself. अगर तुम चाय नहीं तैयार करो तो मैं अपने लिए खाने के लिए कुछ स्वयं ही ढूंढ लूंगा. मिसेस पियर्सन, why not? क्यों नहीं? हेल्प योरसेल्फ. अपनी मदद खुद करो. सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट और स्टाउट पीती है. साइरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन. माइंड यू, आई थिंक इट इज अ बिट थिक. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे. ध्यान दो कि मैं पूरे दिन काम करता रहा हूँ. डॉरिस, सेम हियर. हाँ, मैं भी. मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर डे. 8 घंटे एक दिन में, यही तो काम करते हो तुम लोग. सारिल, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट. और मत भूलो एक दिन में हम लोग 8 घंटे काम करते हैं. मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स. तो ठीक है, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए. सारिल, दैट्स डिफरेंट. ये बड़ा अलग है. डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज. हाँ, वास्तव में. मिसेस पियर्सन कामली, इट वाज, नाउ इट इज इन. हाँ, ऐसा था लेकिन अब नहीं होगा. 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ. 40 घंटे एक सप्ताह में इतना ही कार्य करूंगी. जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ. और मेरे अब 2 दिन ऑफ रहेंगे. डॉरिस एंड सारिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस. एक दूसरे को देखते हैं. देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन रिटर्न्स देयर लुक कामली. और पियर्सन की तरफ देखते हैं जो बहुत ही काम दिख रही है. सारिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट. लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. सारिल एग्जिट्स टू द किचन. और सारिल किचन की तरफ चला जाता है. डॉरिस मूविंग टू द सेटी एंड एक्सेसली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. तुम्हारा कहने का मतलब तुम सैटरडे संडे को कुछ नहीं करोगी? मिसेस पियर्सन, रियली नो, आई वुडंट गो दैट फार. नहीं, मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊंगी. आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर करते हुए कुछ कुकिंग कर दूंगी. विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली. लेकिन तुम्हें मुझसे, तुम लोगों को बहुत नाइसली, अच्छे ढंग से कहना पड़ेगा. एंड थैंक फॉर एवरीथिंग. और जो कुछ भी मैं करूंगी उसके लिए धन्यवाद देना होगा. एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, बट एनी ऑफ यू 40 आवर्स ए वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन. और तुम में से जो 40 घंटे सप्ताह में काम करते हो, जो इंतजार करते रहते हो सब कुछ हम करते रहें ऑन सैटरडे एंड संडे विथ नो थैंक्स फॉर इट. और जिसके लिए तुम लोग धन्यवाद भी नहीं देते, आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट. तो तुम्हें निराशा ही मिलने वाली है तुम लोगों को. माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स. संभवतः मैं वीकेंड पे चली जाऊंगी घूमने के लिए. डॉरिस, गो आउट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड. ठीक है, गो ऑफ, जाओ वीकेंड के लिए. मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? आई कुड डू विथ ए चेंज. मुझे भी बदलाव की आवश्यकता है. स्टक हियर डे आफ्टर डे. दिन प्रतिदिन मैं यहाँ फंसी रहती हूँ. वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह मैं, मेरा यही काम रह गया है. मुझे भी चेंज चाहिए. हु डज? डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो? तुम कहाँ जाओगी? हु वुड गो? यू गो विद यू. और किसके साथ जाओगी? मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस. ये मेरा काम है. यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ. तुम किसके साथ जाओगी? डू यू, तुम्हारा क्या मतलब है? डॉरिस, दैट्स डिफरेंट. ये अलग बात है. मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ. केवल एकमात्र बदलाव, अलग बात यह है कि मैं तुम से बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. सो इट इज यू हु शुड डू द आस्किंग. तुम लोग को पूछने की आवश्यकता है. डॉरिस, डिड यू फील फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? क्या तुम गिर गई थी या कोई चोट लग गई है तुम्हें? मिसेस पियर्सन कोल्डली, नो, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल. लेकिन देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें
जरूर हिट कर दूंगी। इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुम लोगों ने सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं किया। डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, डॉरिस का मुंह खुला रहता है, उसकी तरफ घूर के देखती है, रेडी टू क्राई, रोने ही वाली है। डॉरिस, ओ दिस इज ऑफुल, शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली। मिसेस पियर्सन कोल्डली, स्टॉप ब्लबरिंग, ये रोना धोना बंद करो, यू आर नॉट ए बेबी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली, अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम अच्छे ढंग से पेश आना भी चाहिए। नाउ स्टॉप इट, रुक जाओ, ये रोना धोना बंद करो। सीन 5, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, जॉर्ज पियर्सन बाईं तरफ से आते हैं। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट solemn, self important, pompous, preferably he should be a heavy slow moving type. He notices Doris tears, वो जॉर्ज पियर्सन आते हैं और वो डॉरिस के अपनी बेटी के आंसुओं को देखते हैं। जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज दिस, क्या है, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्यों रो रही हो, ऐसी क्या बात है। डॉरिस थ्रू सॉब्स, रोते हुए सुबकते हुए, यू विल सी, देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट विद ए सॉब और टू ऑन द वे, और डॉरिस भाग के चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, और जॉर्ज घूर के देखते हैं एक क्षण के बाद। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ऐसा कहा तुम देख लोगे। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, क्या कहने का मतलब था। मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, उसे ही पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, जॉर्ज फिर से दरवाजे की तरफ देखते हैं और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, और फिर उनका ध्यान स्टाउट की तरफ जाता है जिसे मिसेस पियर्सन फिर से उठाती हैं पीने के लिए, सिप करने के लिए। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ब, वो चौंक जाते हैं। जॉर्ज, स्टाउट, स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम किस लिए स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, मुझे ऐसा लगा। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय। मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय क्या गलत है। डिवाइडेड, नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने कभी ऐसा करते हुए तुम्हें नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है अभी तो देख रहे हो। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, यस एंड आई डोंट लाइक इट, हाँ देख रहा हूँ लेकिन और पसंद मुझे नहीं आया। इट डजंट लुक राइट, ये ठीक नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे देख करके मैं आश्चर्य में पड़ा। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ऑफ टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू, तो ठीक है ये तुम्हारे लिए एक अच्छा बदलाव होगा, देखो। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी। जॉर्ज, हाँ कुछ समय पहले तुम बहुत सरप्राइज्ड होते थे। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मेरा मैं अपना जीवन अपने ढंग से सामान्यतः जीवन जीना पसंद करता हूँ। यू हैव टू नो दैट बाई दिस टाइम, तुम्हें पता है इस समय। बाई द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया था आज की सुबह। आई वुडेंट वांट एनी टी, आज मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज क्लब में स्पेशल स्नूकर मैच है। एंड ए बिट ऑफ सपर गोइंग, और वहीं पे खाना पीना है, सो नो टी, तो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी, हाँ ठीक है चाय है भी नहीं। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, यू मीन यू डिडंट गेट एनी टी रेडी, तुम्हारा कहने का मतलब तुमने चाय नहीं बनाई। यस, एंड ए गुड थिंग टू एज इट इज टर्न्ड आउट, हाँ अच्छी बात है और अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम्हें चाय की आवश्यकता भी नहीं है, तुम आज वहाँ जाओगे क्लब में। एग्रीड, दैट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है, बट सपोज आई डिड वांटेड सम, अगर लेकिन मुझे अगर कोई आवश्यकता होती तो। मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस लिसन टू द मैन, हे ईश्वर जरा इस आदमी की सुनो। एनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, ये इसलिए परेशान हो रहा है चाय के लिए जो इसे चाहिए भी नहीं। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, जरा क्लब में ऐसा करके देखो। जॉर्ज, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या करूं। गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, बार की तरफ जाते हुए और ये कहो कि तुम्हें बियर की ग्लास नहीं चाहिए। यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, और फिर तुम परेशान हो जाओ कि उन्होंने पहले से वो जो है निकाल के ग्लास में बियर डाल के नहीं रखा तुम्हारे लिए और तुम्हें चाहिए भी नहीं, और तुम परेशान हो जाओ। ट्राई देम ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, जरा उनके साथ ऐसा करके देखो फिर देखो। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे लाफ एट यू इवन मोर देन डू इट नाउ, वे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जितना अभी हंसते हैं। जॉर्ज, डिडंट लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, वे मेरे ऊपर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, सब हंसते हैं। यू हैव टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम्हें अब तक तो ये पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई दूसरा होता तुम्हारी जगह तो उसे पता चल जाता है, क्लब में सब हंसते हैं तुम्हारे ऊपर।
यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, वहां पे सभी लोगों पे तुम जोक का विषय हो, फेमस हो। दे कॉल यू पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन, तुम्हें वे पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन कहते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, उसको जानते हैं कि तुम बहुत धीमे मोटे और ऐसे आलसी, इतने धीमे काम करने वाले हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, डरते हुए, नहीं कभी नहीं, कोई नहीं हंसता मेरे ऊपर। मिसेस पियर्सन, इट इज ऑलवेज बीटन मी, व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग, और ये बात हमेशा मुझे खटकती रही कि तुम ऐसे स्थान पर क्यों समय बिताते हो जहां पर सब तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारे पीछे से, योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, तुम्हें नाम लेकर के अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लिविंग योर वाइफ एट होम, अपने पत्नी को घर पे छोड़ के नाइट आफ्टर नाइट, रात दिन तुम क्लब में जाते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, बजाय कि तुम उसके साथ बाहर जाओ। हु डजंट मेक यू लुक ए फूल, कौन नहीं समझेगा तुम्हें बेवकूफ। साहिल एंटर्स राइट, साहिल दाईं तरफ से आता है, विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में ग्लास मिल्क का ग्लास लिए हुए, एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, दूसरे में केक लिए हुए। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज, जॉर्ज देखते हैं, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और बहुत ही विनय भाव से उसकी तरफ, साहिल की तरफ देख के कहते हैं, जॉर्ज हियर साहिल, तुम बताओ साहिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम मेरे साथ क्लब गए हो क्या, 2 बार। दे डोंट लाफ एट मी, वे नहीं हंसते, कॉल मी पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन, और मुझे पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन नहीं कहते, डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। साहिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, साहिल जो है हिचकिचाते हुए, एंग्रीली गुस्से में, गो ऑन टेल मी, डू दे, और हाँ बताओ बताओ, क्या वो ऐसा करते हैं। साहिल एम्बैरेस्ड, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ डैड, मैं बताते हुए समोरी कि हाँ ऐसा कहते हैं वहां पर आपको। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर, और जॉर्ज एक दूसरे को देखते हैं। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, मैं ही बेवकूफ हूँ। सीन 6, जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, जॉर्ज जो है बाई तरफ जाते हैं, ऐसा लगता है उनके सर पे किसी ने चोट कर दिया हो। साहिल आफ्टर वाचिंग हिम गो टर्न्स इमीडिएटली टू मिसेस पियर्सन, साहिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, माँ आपको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी डैड को, ये अच्छा नहीं है, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, तुमने उनके भावनाओं को चोट पहुंचाई है, माइंड टू, मेरे भी। समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कभी कभी अच्छा होता है अगर किसी के फीलिंग को हर्ट किया जाए। द ट्रूथ ऑफ्टन टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, और इससे अच्छा ही होता है सच्चाई बताना। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, और तुम्हारे पिता अक्सर क्लब न जाएं, परहैप्स दे डिड स्टॉप लाफिंग एट हिम, शायद वो उनके ऊपर हंसना बंद कर दें। साहिल ग्लूमली, आई डॉप्ट इट, मुझे संदेह है। मिसेस पियर्सन सेवरली, पॉसिबली यू डू, बट what I doubt is whether your opinion worth having. What do you know? Nothing. तुम्हें क्या पता है, तुम नहीं जानते। You spend too much time and good money at greyhound races. तुम तो केवल घोड़ों की रेसों पर पैसा अपना और अपना समय बर्बाद करते हो, and dirt tracks and ice shows. Saril, certainly well. What if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही enjoy करता हूँ। Mrs. Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself. मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि अगर वास्तव में तुम इंजॉय कर रहे होते, बट आर यू, क्या तुम इंजॉय कर रहे हो, एंड वेयर इज इट गेटिंग यू, इससे तुम कहाँ जा रहे हो। देयर इज ए शार्प हरीड लुक नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, और फिर एक नॉकिंग होती है। सारिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, शायद मेरे लिए कोई है, मैं देखता हूँ। सारिल हरीज आउट लेफ्ट, बाई तरफ चला जाता है। इन मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और एक क्षण में ही अपना दरवाजा बंद करते हुए प्रवेश करता है। इट इज दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, वही है पड़ोसन, मिसेस फिट्जगराल्ड आई है, वो बूढ़ी महिला। यू डोंट वांट हियर डू यू, तुम्हें नहीं चाहती हो कि इस समय यहाँ आए, क्या तुम चाहती हो। मिसेस पियर्सन सॉफ्टली, सर्टेनली आई डू, निश्चित रूप से। हाँ बुलाओ बुलाओ, आस्क हर इन, कहो उनको अंदर आए, डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग आइदर, और फिर से ऐसे मत बोलना, शी इज वेरी नाइस वुमन, बहुत अच्छी महिला है, विद ए लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव। सारिल एग्जिट्स लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट को समाप्त करती हैं, स्मैकिंग हर लिप्स। सारिल री एंटर्स लेफ्ट, सारिल फिर से बाएं तरफ से आता है, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Come in, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald अंदर आ जाइए। Mrs. Fitzgerald moving to left center anxiously, उत्सुकतापूर्वक। I just wondered if everything is all right. मैं केवल ये पता कि सब कुछ ठीक है। सारिल, no it isn't, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। Mrs. Fitzgerald sharply, of course it is, you be quiet. तुम शांत रहो, तुम मत बोलो हमारे इनके बीच में। Sarilin instantly and loudly, why should I be quiet? मैं क्यों शांत हूँ? Shouting, because I tell you to, you silly spoiled young, तुम बिगड़े हुए, मैं कह रही हूँ शांत हो जाओ। Protesting nervously,
ओ नो श्योरली, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है प्रोटेस्ट करते हुए, घबराते हुए, अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, सिवियरली मिसेस पियर्सन से, कठोरता से, जो कि वास्तव में मिसेस फिट्जगेराल्ड है। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे, मेरे परिवार को मुझे अपने ढंग से आप ठीक करने दीजिए प्लीज, आप बीच में ना बोलेंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड यस बट साइरिल, हाँ लेकिन साइरिल, साइरिल, मिस्टर साइरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, साइरिल स्टार्ट्स ऑफ इनटू द किचन, और वो वहां से किचन में चला जाता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड मूविंग टू द सेटी, सेटी की तरफ जाते हुए विस्परिंग, ओ डियर व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, कामली नथिंग मच, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, केवल उन्हें उनके स्थान दिखा रही हूँ, ऑल डूइंग व्हाट यू ऑफ टू हैव डन लॉन्ग सिंस, ये तुम्हें जो बहुत पहले कर देना चाहिए था इनके साथ। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे हैं? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, और सेटी पे बैठ जाती हैं। यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उन्हें यही बता रही थी, क्लब में उनके बारे में सब क्या सोचते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम डोंट दे, हाँ हाँ वो तो बहुत कुछ सोचते हैं। नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, और नहीं अब उन्हें पता है, मैंने बता दिया उनको। नर्वसली ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जगेराल्ड, मिसेस फिट्जगेराल्ड ये आपने क्या किया, आपको नहीं बताना चाहिए था। मिसेस पियर्सन नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड, अरे इससे भलाई होगा, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर, यू विल सी, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब तुम्हारे इशारे पर होगा, सब तुम्हारा कहना मानेंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से खाएं। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, अधीरता से, वेल व्हाट एवर यू वांट दे ऑल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, जो कुछ भी तुम चाहती हो वो सब यही करेंगे, तीनों के तीनों, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दो मिसेस पियर्सन, कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। सीन 7, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, और वो खुश नहीं होते जब वो देखते हैं कि कौन आया। मिसेस फिट्जगेराल्ड को देख के ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और बाईं तरफ वो आराम कुर्सी पे चले जाते हैं। सिट्स डाउन हेवीली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप्स, सुलगा लेते हैं। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जगेराल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम एनेक्सियसली, जो सब उत्सुकतापूर्वक उन्हें देख रही है। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए देखा, आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड, who doesn't know what she is saying, well yes I suppose so George, George, gosh George, Mrs. Fitzgerald nervously, oh I am sorry Mrs. Fitzgerald, oh माफ कीजिएगा मैंने ऐसा बोला। मिसेस पियर्सन impatiently, what does it matter, इससे क्या होता है, your name is George, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है, isn't it, क्या जॉर्ज नहीं है, what do you think you are, तुम क्या सोचते हो तुम क्या हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, एडिनबर्ग के ड्यूक हो। जॉर्ज एंग्रीली, गुस्से में, व्हाट इज ही गॉट टू डू विथ इट, जस्ट टेल मी दैट, इससे क्या लेना देना है, जरा मुझे बताओ। एंड इजंट बैड एनफ विदाउट हर कॉलिंग मी, तुम मुझे नाम से ना बुलाओ। जॉर्ज नो टी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, कोई चाय नहीं पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, एंड पुअर डॉरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट अपस्टेयर्स, और डॉरिस जो है सीढ़ियों के ऊपर रो रहा है, यस क्राइंग हर आईज आउट, रो के उसकी आंखें निकल रही हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड वेलिंग, ओ डियर आई ऑफ टू हैव नोन, हाँ मुझे ये जानना चाहिए था। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर, एनॉयड, यू ऑफ टू हैव नोन, तुम्हें जानना चाहिए था, यू टू हैव नोन, नथिंग टू डू विथ यू, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मिसेस फिट्जगेराल्ड लुक, वी आर एट 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us, हम लोगों में थोड़ा सा बातें हुई हैं, सो संभवतः तुम माफ करो, तुम जाओ। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जगेराल्ड कैन रिप्लाई, आई वोंट एक्सक्यूज यू। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर्स कम्स टू सी मी, जॉर्ज पियर्सन, अगली बार कोई मित्र या कोई पड़ोसी हमसे मिलने आए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, तो जब मिलो तो कुछ कहो, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन इट एंड सिट डाउन विदाउट ए वर्ड, और ऐसे नहीं कि आकर के बिना शब्द बोले बैठ जाओ, इट इज अ बैड मैनर्स, बुरी बात है। मिसेस फिट्जगेराल्ड नर्वसली, सो इट इज ऑल राइट, ठीक है सब ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक नहीं, वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमें सभी का इस घर में अच्छे तौर तरीके होने चाहिए, और आई विल नो द रीजन वाई, और मुझे पता है क्यों। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल, जॉर्ज की तरफ देखते हुए, जॉर्ज इमीडिएटेड, वेल व्हाट, क्या। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम क्लब क्यों नहीं जाते, स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, आज की रात स्पेशल है, क्यों नहीं जा रहे हो, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, वांटिंग टू हैव ए गुड लाफ, सब वहां चाहते होंगे तुम जाओ और खूब हंसें, गो ऑन देम, अरे जाओ फिर, डोंट डिसअपॉइंट देम, जाकर उन्हें निराश मत करो, न जाकर के। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, ठीक है, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, ठीक है तुम मेरा मजाक उड़ाओ उनके सामने, फिट्जगेराल्ड के सामने, गो ऑन, कहती जाओ, डोंट माइंड मी। 6s and 7s,
कि हमारे अंदर कुछ विचारों का भेद है। पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, डॉरिस रो रहा है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, ठीक है, पड़ोसी को मजाक बनाओ, दिखाओ। Suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, "All right, let her hear it." ठीक है, गुस्से में, सुनने दो उसे। What is the matter with you? क्या मामला है? Have you gone balmy or what? तुम्हारे संग क्या हो गया है? Mrs. Pearson jumping up savagely. If you shout me at again like that, George Pearson, I will slap you, your big fat silly. अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह से चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी थप्पड़। Mrs. Fitzgerald मोर्निंग, ओ नो 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 प्लीज। मिसेस फिट्जगराल्ड जो वास्तव में मिसेस पियर्सन है, बात बिगड़ते देख, अरे नहीं नहीं क्या कर रही हो मिसेस फिट्जगराल्ड। मिसेस पियर्सन सिट्स, और बैठ जाओ। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर bewildered, either I am off my chump or you two are. How do you mean? No no please Mrs. Fitzgerald, look, you are Mrs. Fitzgerald, so why you are telling yourself to stop? अरे आप तो फिट्जगराल्ड हैं, फिर आप क्यों उनको शांत होने के लिए कह रही हैं? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप तो कुछ नहीं कर रही। टेल हर टू स्टॉप, अरे उसे बोलो। देन देयर वुड बी सम सेंस इन, फिर कोई बात होगी। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, पियर्सन को घूरते हुए, आई थिंक यू मस्ट बी टीडी। मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप सेवेजली, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, फिर से जरा बोलो। जॉर्ज इंटिमिडेटेड, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। सीन 8, डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डॉरिस बाईं तरफ से आता है, लुकिंग मिजरेबल, बहुत ही दयनीय हालत में। सी स्टिल वेयरिंग द रैप, वही कपड़े पहने हुए। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठी हुई। मिसेस फिट्जगराल्ड, हेलो डॉरिस डियर। डॉरिस मिजरेबली, हेलो मिसेस फिट्जगराल्ड, आई थॉट यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, मैं सोचे तुम चार्ली स्पेंस के साथ आज बाहर जा रही हो। डॉरिस अनॉयड, व्हाट दैट टू डू विथ यू, आपको क्या करना है लेकर। मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। मिसेस पियर्सन बोलती हैं, शांत रहो, ऐसे मत बात करो। मिसेस फिट्जगराल्ड नर्वसली, नो इट इज ऑल राइट, घबराई हुई, जो कि मिसेस पियर्सन है वास्तव में। नहीं सब ठीक है। मिसेस पियर्सन सिवियरली, इट इज इंट ऑल राइट, सब कुछ ठीक नहीं है। आई वोंट हैव ए डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी हो जो किसी से ऐसे इस ढंग से बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जगराल्ड प्रॉपरली, डॉरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन। डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर, डॉरिस जो अचंभित होकर अपने पिता की तरफ देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, निराश होते हुए, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, आई गिव इट अप, मैंने तो सरेंडर कर दिया है, आई जस्ट गिव इट अप। मिसेस पियर्सन फैसली, वेल आंसर हर, हाँ मिसेस पियर्सन बोलती हैं, जो कि वास्तव में मिसेस फिट्जगराल्ड है, जवाब दो। डॉरिस सल्कली, आई वाज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट, मैं आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है। मिसेस फिट्जगराल्ड, ओह व्हाट ए पिटी डियर, व्हाई हैव यू, क्यों ऐसा तुमने किया। Doris with a flash of temper, गुस्से में, because if you must know my mother's been going on at me making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half witted, मेरी माँ ही कह रही कि उसके दांत ऐसे हैं और उसे बात भी करना नहीं आता है। Mrs. Fitzgerald, rather bolder to Mrs. Pearson, oh you shouldn't have said that, अरे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। Mrs. Pearson sharply, Mrs. Fitzgerald, I will manage my family, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी, you manage yours, आप अपने परिवार को संभालें। George grimly ticking her off now. Are you any ho? Mrs. Pearson even more grimly. They are waiting for you at the club, George. Don't forget. अरे सब क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मत भूलो, जाओ। And don't you start crying again, Doris. और डॉरिस फिर से तुम रोना मत शुरू कर दो। Mrs. Fitzgerald getting up and sudden decision, that's enough, quite enough. George and Doris stare at her bewildered. To George and Doris, now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. तुम सभी जाओ, मैं मिसेस फिट्जगराल्ड के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। सी करेक्ट हरसेल्फ हेस्टली, और वो अपने आप को ठीक करती है विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल लीव अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, और अगर तुम लोग कुछ मिनट्स के लिए चले जाओ, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, और फिर मैं बताऊंगी जब हम क्या बात है, जब हम बातें कर लेंगे। गो ऑन प्लीज, अभी जाओ। आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, मैं वादा करती हूँ तुम्हें फिर पछतावा नहीं होगा। देयर इज समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, कुछ ऐसी बातें जो केवल मैं ही कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, जॉर्ज उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन, कॉज आई कांट, कम ऑन डॉरिस, डॉरिस आ जाओ। Scene 9, George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table. वहाँ पर मूव करती हैं। eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. वो कहती हैं तुम भी सेटी पे बैठ जाओ। Mrs. Fitzgerald, we must change back now. अब हम आपस में पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। वी रियली मस्ट, अब हमें ऐसा कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई, क्यों? बिकॉज दिस हैज गॉन फॉर नाउ। मिसेस फिट्जगराल्ड, जो वास्तव में मिसेस पियर्सन, कहते देखो बहुत हो गया। आई कैन सी दे ऑल मिजरेबल, सब
बुरी हालत में है, दयनीय हालत में है ना, आई कांट बियर इट, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड। अरे इससे थोड़ा और होगा तो इससे सबका अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस, ऑलरेडी सब में बदलाव आएगा। सी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो दाई तरफ जाती है और बैठ जाती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती, आई रियली कांट। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेनी चाहिए। हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, मिसेस फिट्जगेराल्ड जल्दी करिए। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट, ठीक है, अगर तुम दबाव डालती हो तो हम कर लेते हैं। यस आई डू, प्लीज प्लीज, निवेदन है ऐसा करो। सी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, उन्हें हाथों को दोनों फैलाते हैं। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, उसे पकड़ लेती है। क्वाइट नाउ, रिलैक्स, अब शांत हो, स्थिर करो अपनी बॉडी को। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे वैसे ही बोलते हैं। अरसट्टा डम, अरसट्टा लम, अरसट्टा लम डम बोना। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, और इस मंत्र को बोलते हैं जैसा उन्होंने पहले बोला होता है। गोइंग रिलैक्स, उनकी बॉडी ढीली पड़ती चली जाती है। देन कमिंग टू लाइफ, और फिर शरीर से में फिर से वापस जान आती है। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, और इस बार उनका व्यक्तित्व बदल चुका है। अब मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, और मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड, ए वेल आई एंजॉयड दैट। मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलते हैं, अरे मुझे बड़ा मजा आया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, नहीं नहीं मुझे नहीं आया। वेल यू हैव टू हैव डन नाउ। लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन। मिसेस पियर्सन, सुनो, अब फिर से कोमल मत पड़ना इनके साथ। एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड, जो कुछ भी किया गया सब बेकार हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जगेराल्ड, अब मैं ऐसा ही कोशिश करूंगी। दे हैव नॉट had as long as I'd like to have given them. Another hour or two rough treatment might have made it certain. अगर एक दो घंटे और ऐसे ही रफ ट्रीटमेंट में देती तो सब कुछ निश्चित हो जाता। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ सब अच्छा करेंगे। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं अब नहीं जानती कि मैं कैसे उन्हें समझाने जा रही हूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड, सिविली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग। अब तुम उन्हें समझाने की या माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और यू आर डन फॉर, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। विद स्पिरिट इट इज ऑल राइट फॉर यू, अब सब कुछ ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तुम्हारे पति या बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम मेरी बात सुनो। यू एडमिटेड योरसेल्फ यू वेर स्पॉइलिंग देम, तुमने स्वयं स्वीकार किया था तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ रही थी। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, वे तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करते। एनी अपॉलॉजीज, कोई माफी नहीं, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वेयर, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम वहीं पहुंच जाओगी जहां हम पहले थी। आई वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जस्ट गिव देम ए लुक, केवल देखो, ए टोन ऑफ वॉइस, एंड नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, और ऐसा ही इशारा करो कि अब तुम उनके साथ टफ होगी, और एंड इट ऑफ टू वर्क, और ऐसा ही काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, चलो हम इसको टेस्ट करते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे? वेल व्हाट इज इट यू लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, तुम क्या करना चाहते हो, चाहती हो कि वो ऐसा करें। स्टॉप एट होम फॉर वंस, घर पे एकदम रुक जाएं। यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और तुम्हारे साथ मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद करें। मिसेस फिट्जगेराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, कुछ भी जो तुम चाहती हो वो ऐसा करें, वैसे ही करेंगे। दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट। मिसेस पियर्सन हेजिटेंटली, वेल यस आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। मैं रमी का गेम पसंद करती हूँ, लेकिन क्रिसमस के अलावा कभी भी मौका नहीं मिलता खेलने का। मिसेस फिट्जगेराल्ड, गेटिंग अप, दैट विल डू देन, तो ऐसा होगा। सी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देम टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म, दृढ़ रहना, और यू हैव हैड इट, ये सब बिगड़ जाएगा। सी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और यू कैन कम इन नाउ, तुम सभी लोग अंदर आ जाओ। कमिंग डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर ए फर्म हैंड, लेकिन याद रखना तुम कुछ भी मत बोलना, माफी नहीं मांगना। जॉर्ज डॉरिस एंड सारिल फाइलिंग थ्रू द डोरवे, सब दरवाजे पर खड़े हैं, लुकिंग अप्रेसिवली एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहे हैं। जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं जा रही हूँ, आप लोग जा सकते हैं। द फैमिली looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. उसे देख के मुस्कुराते हैं, और Doris anxiously, yes mother, हाँ माता, smiling, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought you will do. हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग बाहर नहीं जाना चाहते, बताती हूँ क्या करना है। Giving a final warning, मैं फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। रिमेंबर, मिसेस फिट्जगेराल्ड दरवाजे से कहती हैं। मिसेस पियर्सन, नो, नॉडिंग, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली,
स्वीकारते हुए और फिर परिवार की तरफ देखते हुए, नो ऑब्जेक्शंस, आई होप कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, नो मदर, वट एवर यू से, तुम क्या कहते हो? स्माइलिंग, आई थॉट वी डिड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, हम लोग रमी खेलते हैं, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी while I have a talk with your father, फिर तुम बच्चे ही आज का खाना बनाओगे जब मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। जॉर्ज फैमिली, सूट्स मी, हाँ ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू, ये खाना बनाने का कार्य तो बड़ा चैलेंजिंग है, हाँ भाई कैसा रहेगा तुम? यस दैट्स ऑल राइट, ठीक है। वेल ठीक है साहबली, व्हाट स्पीक्स अप, बोलो। ओ थिंक इट वुड बी लवली, मैं समझती हूँ कि अच्छा होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून। मिसेस फिट्जगेराल्ड, गुड बाय, फिर से आना। मिसेस फिट्जगेराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम, अच्छा समय बीते। मिसेस फिट्जगेराल्ड exits left and the family cluster round mother as the curtain falls and the play ends. Dear students, thank you for watching the video presentation of the lesson Mother's Day.